regarding your design principles of information security. We had discussed these principles in our last lecture. So we'll be going through a small this introductory part again, because we'll be today we'll be discussing all the principles in detail. So इसलिए अब आज दोबारा से हम करेंगे और इसको मैं एक एक करके principles को थोड़ा थोड़ा सा explain करूंगा, and then we'll move on to the details of each principle only. These three slides we have already discussed. So just a review of it. So we'll be looking at the principal designs and implementation of security mechanisms. And these principles draw an idea of simplicity and restriction. Simplicity makes the design and mechanisms easy to understand. आप already हमने जब भी designing की बात की है, अगर हम information security को implement करना चाहते हैं, there should be a method to design it. So when we are designing, our designing is simple. That means will be easily understandable also, and it will be really easily understandable to the layman also. कि कैसे एक information security का mechanism को implement किया गया है. So simplicity in your design makes your mechanism easy to understand for all. The entity can access only the information which it needs, and whoever has an access to an information security part, he or she uh, is given only that much information which is required by that very person, or you can say जिसके लिए वो authorized है. Authorized means जितना access उनको मिलना चाहिए उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा. So this is your base or basic principle of your information security. Entity can communicate with other entities only when necessary and in as few and narrow ways as possible. एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से there is a possibility, there is a common this communication that goes on between the entities. Plus it is also possible that these communication is limited to quite less. This communication is there, so that there is no you can say flaws in your information security which can be encashed by any intruder. इसलिए flaws को reduce करने के लिए क्या करते हैं हम कि information security के कुछ एक ways के accordingly हम जो है entities की communication को भी limit out करते हैं. ठीक है. So this is main your introductory part of your information security. So for this we have some design principles, and these design principles have been categorized into 8 categories. Principle of least privileges, the term is indicating कम से कम required privileges ही सिर्फ जो है किसी भी पर्सन को, किसी भी एंटिटी के कॉरस्पॉन्डिंग किसी भी जो यूजर को कम से कम लीस्ट प्रिविलेजेस उतने दिए जाते हैं ताकि वो अपना टास्क जो है कंप्लीट कर सके. सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल. सेकंड आता है फेल सेफ डिफॉल्ट्स. जब तक एक ऑब्जेक्ट जो है किसी चीज के लिए डिमांड नहीं करता है तब तक उसको जो है वो ऑब्जेक्ट जो है का असेस डिनाइड ही रहता है. इसका मतलब तभी उस ऑब्जेक्ट का असेस एक यूजर को दिया जाता है जब उसकी वो डिमांड करता है. सो सब्जेक्ट मीन्स यूजर, ऑब्जेक्ट मीन्स जो भी चीजें आप उसको असेस दे रहे हो. So whenever you give an access of an object to a subject, you only give that access unless and until a subject has demanded for it. तब तक उसको default way में उसको denied access ही रहता है. This is the second principle of your information security. Third important principle is economy of mechanism. इसमें क्लियर है कि जितना इजी से सिंपल मैकेनिज्म होगा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का उतना ही इकोनॉमिकल होगा और उस मैकेनिज्म को अंडरस्टैंडेबल भी होगा. सो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी ऑफ मैकेनिज्म हाईलाइट्स या यू कैन से पुट्स एम्फसिस ऑन सिंप्लिसिटी पार्ट. सो मेन सिंप्लिसिटी इज द फैक्टर वेयर यू हैव टू have a focus so that it is easily understandable and easily implementable also. Fourth major principle is principle of complete mediation. इसमें यह है जितने भी assess हैं object के that can be checked to ensure that they should be allowed or not allowed, clear cut. So whenever an object access has to be given to any other subject, every time you have to check that whether this access is allowed or not allowed, and you have to ensure whenever you are going to give an access of an object to a subject that it is allowed, then only we are giving it. Means इसमें कहीं ना कहीं authorization हुई हुई है, इसको already हमने ऑथराइजेशन में ये लिखा हुआ है या इसमें ऑलरेडी हमने एक रूल डाला हुआ है कि इसको अलाउ करना है, तो फिर ही हम उसको अलाउ करेंगे. दिस इज द फोर्थ प्रिंसिपल. सो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दीज फोर प्रिंसिपल्स ऑन योर फर्स्ट दिस स्लाइड? You can write down on your chat, and if you have understood it, you can even write that you have understood it. It's just a revision of the last lecture only.
Anyone? So if it's clear, we'll move further. Write down on your chat, few of you. Okay, thank you. I'll move further now. Fifth principle, principle of open design. The security of a mechanism should not depend on the secrecy of its design and implementation. जो हमारी सिक्योरिटी के लिए हमने जो भी डिज़ाइन प्रिंसिपल लगाया वो एक ओपन डिज़ाइन होना चाहिए. उसका जो सीक्रेसी है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए कि सिक्योरिटी मैकेनिज्म कितना स्ट्रांग है. इट शुड बी ओपन बट इट शुड बी सिक्योर्ड. ओपन मीन्स पता हो ये कैसे किया हुआ है, सबको ये पता हो, बट उसका जो डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन पार्ट के ऊपर ऐसी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए कि उसका डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन इतना कॉम्प्लेक्स है कि आम जो यूज़र है उसको अंडरस्टैंडेबल ही ना हो. So principle of open design means it is easily understandable, but when you try to intrude into it, it has a great security mechanism under it. उसमें जो डिजाइनिंग में और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में उसको जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. चाहे वो इजी है, ओपन है, डिज़ाइन है, क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है, पता भी लग रहा है कैसे करना है, बट फिर भी प्रिंसिपल ऑफ ओपन डिज़ाइन ये कहता है कि हमारे को जो है डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर. ये हमने डिटेल में भी पढ़ने अभी सारी प्रिंसिपल्स. सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड्स व्हेन वी गो इनटू डिटेल्स ऑफ इट. प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ प्रिविलेजेस. जो हमारे को परमिशंस ग्रांट करनी है वो अलग पड़ी होती हैं और जो एक्चुअल में प्रिविलेजेस हैं वो अलग जगह पड़े होते हैं. सो जब भी हमने किसी भी प्रिविलेज के कॉरेस्पॉन्डिंग परमिशन ग्रांट करनी है तो वो साथ साथ ये भी देखता है कि कौन कौन सी कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई हुए हैं. दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर परमिशन इज बीइंग ग्रांटेड फॉर असेस टू अ पर्टिकुलर प्रिविलेज. इसलिए जो सिंगल कंडीशन के ऊपर नहीं होना चाहिए कि आपका जो मैकेनिज्म है उसके ऊपर आप जो है सीधा ही इसको अलाउ कर दो. हमें जो है वो कम से कम 2 या 3 इसके कंडीशंस या मे बी मोर देन 3 or 4 conditions should be satisfied by a particular subject or a user. Only then you give an access of a privilege to that very user. ये क्लियर उसमें कहता है. प्लस इससे क्या हो रहा है कि प्रिविलेजेस जो है वो सेपरेट पड़े हुए हैं और जो असेस मैकेनिज्म है जो मेथड है वो अलग पड़ा हुआ है. So this is your principle of separation of privileges. Another is principle of least common mechanism. The mechanisms used to assess resources should not be shared. Very important over here. जिस मैकेनिज्म के थ्रू आप रिसोर्सेज का असेस देने जा रहे हो अगर उसको शेयर कर दोगे तो फिर तो वो इंट्रूडर इजीली जो है या जो हैकर है उस तक कहीं ना कहीं से किसी तरह भी वो पहुंचा जा सकता है. और उसको अगर मैकेनिज्म ही पता लग गया कि इस इन रिसोर्सेज का असेस करने का मैकेनिज्म ये है तो देयर माइट बी सम फ्लॉज. इट कैन बी एनकैश्ड बाय हैकर और यू कैन से इंट्रूडर. इसलिए लीस्ट कॉमन मैकेनिज्म ये प्रिंसिपल कहता है कि जो रिसोर्सेज का असेस है वो किसी के साथ भी शेयर नहीं होना चाहिए. उसका मैकेनिज्म जो है वो नहीं शेयर होना चाहिए. And the next last principle is principle of psychological acceptability. Security mechanisms should not make the resource more difficult to assess than if the security mechanisms were not present. अब अगर आप सिक्योरिटी के नाम पे इतने ज़्यादा सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स लगा दोगे, इतने ज़्यादा सिक्योरिटी चेक्स लगा दोगे कि उसका असेस ही इतना डिफिकल्ट हो जाए तो वो भी नहीं. फिर क्या होता है कि जो यूज़र है वो अल्टीमेटली क्या करता है उन रिसोर्सेज का असेस ही छोड़ देता है. वो कहता है यार इसमें इतनी इट इज़ गोइंग टू टेक सो मच टाइम just to assess a small simple this resource, so why to go for it. So psychological acceptability का मतलब है कि यूजर उसको एक्सेप्ट भी करे. जैसे एग्जांपल है बैंकिंग मैकेनिज्म में मिनिमम पॉसिबल सिक्योरिटी मैकेनिज्म एक ओटीपी लगाया गया. अब ओटीपी वाज द सिंपलेस्ट एंड easiest way for the user to have a second step of your security mechanism that was connected with their mobile numbers. अगर हम उसमें कोई और ऐसे का मैकेनिज्म बनाते जो कि कॉम्प्लेक्स होता तो माइट भी यूजर एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा ना होती. साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो बैंकिंग को नेट बैंकिंग को असेस करने की या डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करने की एक्सेप्टेबिलिटी ना होती. सो इसलिए सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स जितने भी होते हैं वो इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए जिससे कि उनका असेस ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो. So is it clear? This is a just a review of our previous lectures. Any question regarding it? You can write down on your chat. Any question regarding it? And then now, if there is no question, I'll move on to the principles one by one now. The principle of least privileges, that is even in short form called as POL. ये फर्स्ट प्रिंसिपल है. अब इसकी डिटेल में जा रहे हैं.
Although we have, I think so, studied this principle also last time, we'll be again studying it today. The principle of least privileges, an important concept in computer security, is the practice of limiting access rights for users to the bare minimum permissions they need to perform their work. अब जब यूजर को मिनिमम परमिशंस के थ्रू एक असेस राइट मिल जाए तो उसको हम लीस्ट प्रिविलेजेस कहते हैं. मिनिमम मींस उसका काम होने के लिए उसको कम से कम जो है जिसे कह सकते हैं कि सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स के थ्रू गो थ्रू होना पड़ेगा, तो उसको कहते हैं मिनिमम टू मिनिमम सिक्योरिटी के थ्रू ही उसको असेस मिल जाए, राइट मिल जाए. तो दैट इज योर प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेजेस. Under POLP, users are granted permissions to read, write, or execute only the files or resources they need to do their job. जिस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए, चाहे उसको रीड मैकेनिज्म चाहिए, चाहे उसको राइट मैकेनिज्म चाहिए, चाहे उसको एग्जीक्यूटेबल मैकेनिज्म चाहिए किसी भी फाइल के ऊपर, सिर्फ उसको अपनी जॉब करने के लिए जो रिक्वायर्ड है उसी का ही असेस दिया जाएगा. किसी और प्रिविलेज का किसी और फाइल के ऊपर किसी भी यूजर को असेस नहीं दिया जाएगा. इसका मतलब है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेजेस मींस यूजर इज ग्रांटेड रीड, राइट एंड एग्जीक्यूटेबल परमिशंस only on the resources it needs to complete their job. Rest, they are not given access to any other resource. So in other words, इसको हम क्या कहते हैं? Least amount of privilege necessary. That is called as least amount of privilege necessary now. So additionally, the principle of least privilege can be applied to restricting access rights for applications, systems, processes and devices to only those permissions required to perform the authorized activity. So clear cut आप इसके ऊपर access rights चाहे applications के ऊपर हो, चाहे systems के ऊपर हो, चाहे processes के ऊपर हो या devices के ऊपर हो, ये सिर्फ और सिर्फ उतनी permissions जो required permissions हैं, जो authorized activity को करने के लिए permissions हैं, वो जो है आप उनको दे सकते हो यूजर्स को जितनी भी उनके काम करने के लिए रिक्वायर्ड है. सो दिस इज POLP नाउ. सो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग POLP? Anyone? You can write down on your chat if you have any question regarding this. Okay, further, depending on the system, some privilege assignments may be based on attributes that are role based, such as business units like marketing, human resources or IT. अब इसमें ये भी होता है कि सिस्टम टू सिस्टम वेरी करते हैं प्रिविलेजेस. सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज समटाइम्स सम असाइनमेंट्स आर सच व्हिच हैव सम एट्रीब्यूट्स इन सच अ वे जो कि रोल बेस्ड होते हैं. रोल बेस्ड मींस जिस तरह का रोल है उस तरह की उसके एट्रीब्यूट्स जो है वो रिक्वायर्ड है. So if you are connected with some business unit and you are having different departments, you have a marketing department, you have a human resources department, you have an IT department. So you can give an assess to a user depending on what kind of role it has been assigned in the company or organization. अगर तो वो marketing से connected है तो उसको marketing के related जितने भी attributes हैं उनका assess देना है, इसलिए वो attribute role based हो गया. If a person is connected with the human resources, that means जो कि एक human resources नहीं जो humans को manage करते हैं, उनकी salaries को manage करते हैं, उनके जो उनको privileges देने होते हैं एक company ऑर्गेनाइज उनको manage करते हैं. अगर उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो उसके जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको कितना असेस देना है और उनके रिगार्डिंग जितने भी एट्रीब्यूट्स उनको देने हैं वो उनको उसको प्रिविलेजेस का असेस उन लोगों को दिया जाता है. सिमिलरली रिलेटेड टू योर IT डिपार्टमेंट, तो उसमें असेस दिया जाता है. सो दीज प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेजेस मींस कि एक दूसरे अब मार्केटिंग के लोगों को ह्यूमन रिसोर्सेज के कुछ एट्रीब्यूट्स का असेस नहीं दिया जाएगा, उनको दिया जाएगा बट दैट वुड बी द मिनिमम. अगर उनको दिया जा रहा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मार्केटिंग पीपल कैन ओनली हैव अ रीड असेस टू योर some of the resources of human resources department. अब अगर सिमिलरली वाइस वर्सा है कि ह्यूमन रिसोर्सेज के लोगों को अगर मार्केटिंग के कुछ जो फील्ड है उनका असेस देना है, that might be a read part. They are not allowed to write on it. They are not allowed to any have assess of your executable part. So इसलिए वो हो सकता है कि read part कुछ एक अगर necessary है, वो भी जरूरी नहीं है. If it is necessary, they can be given some access for reading some of the data in your marketing, and similarly vice versa. So in addition to other parameters such as location, seniority, special circumstances और time of day, ये अलग अलग चीज़ें और भी हैं कि लोकेशन कहाँ पे है, सीनियरिटी जिसकी है उसको ज़्यादा असेस मिलेगा, जिसकी जो सीनियरिटी कम है वो that might be a person might be having a lesser assess.
या कोई स्पेशल सर्कमस्टांसिस है, किसी दिन उसको थोड़ी देर के लिए असेस देना बहुत जरूरी हो गया बिकॉज द पर्सन कंसर्न वाज नॉट ऑन लीव एंड द नेक्स्ट एक्टिंग पर्सन हु इज एक्टिंग एज अ मैनेजर फॉर टुडे, बिकॉज होता है ना मैनेजर, उसके नीचे जो नेक्स्ट सेकंड इन कमांड है तो उसको कई बार मैनेजर का रोल करना पड़ता है। उस केस में उसको थोड़ी देर के लिए असेस भी दिया जा सकता है, वो स्पेशल सर्कमस्टांसिस होते हैं, तो उसमें भी उसको असेस दिया जा सकता है। Now, depending on the operating system in use, administrators may need to tailor the different default privilege settings available for different types of user accounts. So depending on जो operating system जितना यूज हो रहा है, तो administrators जो है वो different default privilege settings जो है available होती हैं, उनको different type of user accounts के साथ relate करते हैं और उनको assess देते हैं। So ये least privileges का जो rule ये कहता है। Are you clear with this principle? Any question regarding it first up till here? This is the base of your NOR POLP. Anyone having any question over here? If you are clear with it, you can write down clear. Some of you can write over here as a message. Okay, that's fine. I'll move further now. Now, principle of least privileges, it has a concept of super user now. A very important concept over here. Super user accounts, mainly used for administration by IT staff members. अब सुपर यूजर होता है, एक तो यूजर हो गया, एक हो गया जो एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, एक सुपर यूजर अकाउंट होता है जिसके पास असेस सारा का सारा होता है। मीन्स सारा जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी प्रिविलेजेस हैं, उन सब के ऊपर टोटल असेस जो है वो सुपर यूजर के पास होता है। So if we take an example of, let's say, institution over here. So over here, if we say that we have an ERP and that has two modules, one is for you people like student and one is for your faculty. So super user over here is either the IT department head, जो कि यहाँ पे एक है, और साथ में सेकंड वन इज प्रिंसिपल सर। तो सुपर यूजर अकाउंट का सेस जो है वो प्रिंसिपल सर के पास रहेगा, जो सारा कुछ सारी चीजें जो है वो सेस कर सकते हैं। सो इसमें मेन पर्पस सुपर यूजर को समझने का यही है कि ये या तो आईटी का स्टाफ मेंबर हो सकता है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन करता है एंड हैव एन अनलिमिटेड प्रिविलेजेस ओवर सिस्टम, उसके पास अनलिमिटेड प्रिविलेजेस हैं, उसमें कोई भी उसको कोई भी प्रिविलेज जो है ऐसा नहीं है जो डिनाइड है। So the privileges granted to super user accounts include full read, full write, full execute privileges, as well as the ability to make changes across a network. वो एक से दूसरे सोर्स में, दूसरे से तीसरे सोर्स में कहीं पे भी रीड राइट्स भी हैं उनके पास, राइट राइट्स भी हैं और एग्जीक्यूटिबल राइट्स भी हैं, और वो कहीं पे भी कोई भी चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए सुपर यूजर अकाउंट ऐसा होता है जिसके पास सारे टोटल डाटाबेस के ऊपर कहीं पे भी टोटल उसके पास राइट्स अवेलेबल। For example, installing or creating software or files, modifying settings and files and deleting data in user, ये सारी चीजें इसमें हो जाती हैं। इंस्टॉल करना, क्रिएट करना सॉफ्टवेयर और फाइल्स को, मॉडिफाई करना सेटिंग्स और फाइल्स को, डिलीट करना डाटा या यूजर्स को, ये सारा कुछ जो है वो सुपर यूजर कर सकता है। तो इसलिए एक मेजर अकाउंट रहता है पीओएलपी में, जो कि सारे एक तो ये हो गया। सेकेंडली, यही सुपर यूजर के थ्रू वो डिफरेंट यूजर्स को मिनिमम लीस्ट प्रिविलेजेस असाइन भी करता है, इसलिए ये सुपर यूजर ही है जो कि दूसरे यूजर्स को इट प्रोवाइड्स विद द एक्सेस टू द प्रिविलेजेस, whether it is read privilege, whether it is write privilege, whether it is your executable privilege on any of the resource of the particular software or application. ठीक है, so this is your super user concept over here. Any question regarding it? Any question up till here? Okay, I'll give you one poll. So you have 1 minute to attempt this poll. So your time starts now. Half time is over.
Last 5 seconds left. Hurry up. Okay. I'm ending poll. So I'm sharing the result also. Just have a look into it. So under POLP, principle of least privileges, users are granted permissions for all the three things: read, write, and execute. Therefore, the answer is here, all of the above. Still, few of the students, they have written your read and write this privileges. Okay. I'll stop sharing the results now. Next principle, principle of fail-safe defaults. Now, this principle restricts how privileges are initialized when a subject or an object is created. अब ये वाला जो लाइन है, दिस इज द सेम एज वी हैव जस्ट सीन इन द प्रीवियस स्लाइड ओनली, जो कि हमारा एक स्टार्टिंग वाली स्लाइड थे. तो ये प्रिविलेजेस को इनिशियलाइज करता है, और ये तब करता है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होते हैं उसी टाइम पे. सो दिस प्रिंसिपल रिस्ट्रिक्ट्स हाउ प्रिविलेजेस आर इनिशियलाइज्ड, मींस उसको इनिशियलाइजेशन कैसे करनी है. और जब एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, दैट मीन्स यूजर भी क्रिएट हुए और प्रिविलेज की भी एग्जिस्टेंस आई, उसी टाइम पे ये प्रिविलेजेस को इनिशियलाइज भी कर देता है. The principle of fail-safe default states that unless a subject is given explicit access to an object, it should be denied access to that object. Explicit access होता है कि सिर्फ और सिर्फ उसी को access दिया गया है, उसके साथ शेयरिंग access नहीं दिया गया. So उसमें कोशिश ये की जाती है, प्रिंसिपल ऑफ फेल सेफ डिफॉल्ट कहता है कि जब भी एक यूजर को किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सप्लिसिट access नहीं दिया गया, तब तक उसको access जो है डिनाइड ही रहेगा. दैट मीन्स जब वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या प्रिविलेज टोटली अवेलेबल नहीं होगी, तब तक हम उसको दूसरे यूजर को असाइन नहीं कर पाएंगे, दूसरे यूजर को उसका असेस नहीं दे पाएंगे. बट इसमें कुछ एक चीजें जो है इसमें आप कह सकते हो कि एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे रीड राइट्स है. रीड राइट्स नॉर्मली शेयर मोड में होते हैं, इसलिए रीड राइट्स के केस में ये वाला फेल सेफ डिफॉल्ट जो है वो जरूरी नहीं होता है. सो फेल सेफ डिफॉल्ट के केस में जहां राइट और एग्जीक्यूटेबल जो आपके प्रिविलेजेस हैं, उस केस में एक्सप्लिसिट राइट्स होने चाहिए एक पर्टिकुलर यूजर को. इसलिए एक्सप्लिसिट राइट्स तभी होंगे जब वो जो प्रिविलेज है, जो कि जिसे हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, वो टोटली फ्री है, उसको कोई और राइट और एग्जीक्यूटेबल पर्पस के लिए कोई भी और यूजर उसको यूज नहीं कर रहा है, तब उसको हम दूसरे यूजर को ये राइट्स दे सकते हैं. सो दिस प्रिंसिपल ऑफ फेल सेफ डिफॉल्ट स्टेट्स that unless a subject is given explicit access to an object, it should be denied access to an object. तब तक उसको deny करते जाओ. This principle requires that the default access to an object is none. ये भी ये है कि डिफॉल्ट, अब हम कई बार कहते हैं कि अगर डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट जो है ये सपोज एग्जांपल ले लीजिए रोल नंबर आपका, तो रोल नंबर इटसेल्फ इज बाय डिफॉल्ट टेलिंग यू दैट यू आर अ स्टूडेंट ऑफ बीसीए इन योर कॉलेज. उससे ही सीधा पता लगता है क्योंकि उसकी रेंज है. तो बीसीए को असाइंड है तो उसमें आपका वो डायरेक्टली वो डिफॉल्ट है. अगर सपोज आपके रैंडम नंबर्स होते, रैंडम रोल नंबर्स होते, उस केस में हम रोल नंबर से कुछ भी ऐसा प्रिडिक्ट ना कर पाए, तो उस केस में डिफॉल्ट असेस जो है वो कुछ भी नहीं है, या डिफॉल्ट हम कुछ भी नहीं प्रिडिक्ट कर पाएंगे. सो यहाँ पे भी यही कहता है कि डिफॉल्ट असेस टू एनी ऑब्जेक्ट इज नन. डिफॉल्ट कुछ भी नहीं है. whenever a subject it demands for a particular access to an object, only then it is given that access. और उसमें भी वो ये ध्यान में रखता है कि उसका एक्सप्लिसिट असेस हो. एक्सप्लिसिट मीन सिर्फ उसी को असेस दिया गया उस टाइम पे. सो whenever access, privileges or some security related attribute is not explicitly granted, it should be denied. जब तक हम किसी भी असेस को, प्रिविलेज को या कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड एट्रीब्यूट को एक्सप्लिसिटली ग्रांट नहीं करते, तब तक वो डिनाइड मोड में ही रहता है. किसी भी यूजर को उसको हम असेस नहीं दे सकते हैं. ठीक है. सो मोर ओवर, if the subject is unable to complete its action or task, it should undo those changes it made in the security state of the system before it terminates. अब कई बार क्या होता है, सब्जेक्ट बेस में टर्म यूज की गई है यूजर के लिए, और जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिविलेज के लिए की गई है. किसी भी सब्जेक्ट को कोई एक्शन या टास्क करना था, बट वो उसके थ्रू कोई भी चेंजेस नहीं कर पाया, तो वो किसी भी कारण से वो टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाया, बट उसने कुछ एक चेंजेस उसमें की हैं. तो जब वो उस पर्टिकुलर स्टेट से, दैट मीन्स जब वो उस प्रिविलेज को का असेस छोड़ रहा है, तो वो कहता है कि चलो मेरा टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा, मैं इसको अभी फिलहाल के लिए छोड़ देता हूँ, मैं दोबारा से इसको असेस लूंगा. तो उस केस में
जितने भी चेंजेस उसने किए उसको अंडू करना चाहिए। उससे बेनिफिट क्या होता है कि सिक्योरिटी स्टेट जो है वो उसका टर्मिनेट हो जाएगा और उसके थ्रू वो सिर्फ और सिर्फ जो उसका प्रीवियसली स्टेट है, जो कि एक हम कह सकते हैं कि ऐसी स्टेट है जो कि करेक्ट स्टेट है, वो दोबारा से उसी स्टेट में पहुंच जाएगा। सो एक्शंस जो भी सब्जेक्ट है वो तब तक उसके ऊपर एक्शन या टास्क को जब तक कंप्लीट नहीं करता तब तक उसको हम उस पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। अगर वो हाफ काम करके और सोचता है कि मेरा काम कंप्लीट नहीं होगा तो मैं अभी फिलहाल, या सपोज कह लो कि एक यूजर ने काम शुरू किया और उसको कोई और इंपॉर्टेंट काम आ गया, उसने उसको बीच में छोड़ना है, तो बीच में छोड़ने का मतलब है वो सारी चीजें जो उसने चेंजेस किए हैं वो अनडू हो जाए अपने आप, और सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली उसी स्टेट में चला जाए जिसमें उससे पहले था, उसको असेस देने से पहले था। सो दिस वे इवन इफ द प्रोग्राम फेल्स द सिस्टम इज स्टिल सेफ। अगर सपोज ये भी हो सकता है ऑन दी स्पॉट जो यूजर है उसका सिस्टम ही जो है वो बंद हो गया, या उसका जो नेटवर्क है ऑटोमेटिकली बंद हो गया, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वो उसके मैकेनिज्म कंप्लीट नहीं हुआ, उस केस में वहां पे कहीं पे भी जो है इनएक्यूरेसी नहीं होनी चाहिए। सो वो सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली अनडू करके चेंजेस प्रीवियस स्टेट में चल जाए और सिस्टम जो फेल है वो ना हो और सेफ स्टेट में ही रहे। So is it clear? There's any question regarding this principle of fail safe default? Anyone having any question? Or you can write clear message over here. हाँ जी, साहिल, मीनाक्षी, दशदीप, किरणदीप. Okay, that's fine. Okay, I'll move further now. Example. It has been explained with an example fail-safe default. If the mail server is unable to create a file in a spool directory. अब एक मेल सर्वर होता है जिसमें कि आप जैसे जीमेल है उसका एक सर्वर है, और वहाँ पे वो कोई भी एक जो एक स्पूल डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल बनाता है। स्पूल डायरेक्टरी होती है जो एक लार्ज नंबर ऑफ डायरेक्टरीज हैं, उसमें प्रिविलेजेस दिए होते हैं हर एक को एक असेस करने के। इट शुड क्लोज द नेटवर्क कनेक्शन, इशू एन एरर मैसेज एंड स्टॉप। अब जब मेल सर्वर जो है वो किसी भी फाइल को क्रिएट नहीं कर पा रहा है स्पूल डायरेक्टरी में, तो उसको उसको करने के लिए क्या करना चाहिए, उसको एक तो नेटवर्क का कनेक्शन जो है उसे क्लोज करना चाहिए, एक एरर मैसेज शो कर देना चाहिए लोगों को जो उसको असेस करें, और उसको स्टॉप कर देना चाहिए। ओनली देन इट विल बी एबल टू क्रिएट अ फाइल इन अ स्पूल डायरेक्टरी। अगर सपोज वो डायरेक्टली नहीं क्रिएट कर पा रहा तो इसका मतलब जब उसको असेस मिला भी है बट उसमें उसके साथ साथ कुछ और लोग भी उस पर्टिकुलर डायरेक्टरीज को असेस कर रहे हैं, तो उसमें एक नई डायरेक्टरी क्रिएट नहीं हो पा रही, तो उस केस में क्या किया जाए, एक तो नेटवर्क कनेक्शन स्टॉप कर दिया जाए, क्लोज करना चाहिए, उससे पहले उसको एक एरर मैसेज देना पड़ेगा और उसको सारे मैकेनिज्म को स्टॉप करना पड़ेगा। So it should not try to store the message elsewhere or to expand its privileges to save the message in another location, because an attacker could use that ability to overwrite other files or fill up other disks. अब इसमें ये भी होता है कि अगर सपोज वो ये कर रहा है स्पूल डायरेक्टरी में कोई एक फाइल क्रिएट करने के लिए वो नेटवर्क कनेक्शन को टोटली क्लोज कर रहा है, एरर मैसेज भी इशू कर रहा है और स्टॉप भी कर रहा है, उसके साथ साथ उसको ये भी ध्यान में रखना है कि जो भी वो मैसेज दे रहा है वो कहीं सेव ना कर ले, उसको किसी और लोकेशन के ऊपर सेव ना करे। और इसका कारण ये है कि वो जो मैसेज है वो अटैकर उसको मिसयूज कर सकता है फॉर स्टॉपिंग अ पर्टिकुलर कनेक्शन एंड टू असेस द रिसोर्सेज ऑफ पर्टिकुलर मेल सर्वर। उसको असेस कर सकता है, एरर मैसेज शो कर दिया यूजर को लगा कि जो है कनेक्शन टूट गया, या कोई एरर मैसेज में जो भी मैसेज दिया वो वाला जो कि एक मेल सर्वर के थ्रू आना चाहिए था वही आ रहा है, और उतनी देर में वो जो मैसेज है वो एक्चुअल में अटैकर ने भेजा है और वो आपका मेल सर्वर असेस कर रहा है। तो इसलिए वो ये भी कर सकता है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कुछ एक फाइल्स को ओवरराइट भी कर सकता है अगर हम उसको असेस जो है वो डिनाई ना करें। इसलिए ये जब भी ऐसे का कुछ काम होता है तो जो मेल सर्वर के ऊपर कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस केस में वो जो एरर मैसेज है वो इमीडिएटली इशू करके नेटवर्क कनेक्शन स्टॉप कर देता है ताकि कोई भी अटैकर उसका मिसयूज ना कर पाए। इसको हम ये भी कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, कि जो अगर सपोज वो मैसेज का मिसयूज करके सर्विस को रोक दिया किसी यूजर को, तो हम उसको कहते हैं ये डिनायल ऑफ सर्विस अटैक ही हो गया एक तरह का। So the protections on the mail spool directory itself should allow create and write access only to the mail server and read and delete access only to the local servers. So no other user should have access to the directory. अब इसमें भी आगे प्रोटेक्शन क्या प्रोवाइड की गई है मेल स्पूल डायरेक्टरी में, कि जो वो खुद है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी में क्रिएट और राइट असेस वो कर सके मेल स्पूल के अंदर, प्लस उसके अलावा जो लोकल सर्वर होता है जिसके थ्रू आपको असेस मिल रहा होता है उसमें सिर्फ रीड और डिलीट असेस लोकल सर्वर को दिया होता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता ताकि कोई नई मेल्स जो है वो क्रिएट ना हो सके।
कोई फॉल्टी मैसेज जो है वो यूजर को ना जा सके, ताकि हमारा जो सिक्योर्ड सिस्टम हो, मेल जो है उसको, क्योंकि हम एक लीगल डॉक्यूमेंट भी मानते हैं, एक ऐसे का भी मैकेनिज्म मांगते हैं जिसके थ्रू हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड वी कैन कनेक्ट टू देम, इसलिए उसको एक सिक्योर रखना जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो लोकल सर्वर में रीड और डिलीट एक्सेस ही देता है यूजर को, और उसके अलावा कुछ क्रिएट करना है और अगर कोई राइट एक्सेस देने हैं तो वो उनको डायरेक्टली जो है वो अपने मेल सर्वर से देता है, ताकि उसका वो ऑथेंटिसिटी हर वक्त चेक करता रहे। उसको डायरेक्टली एक्सेस यूजर को ऐसे ही नहीं दे देता, क्योंकि वो जो बीच में अटैकर होता है वो कुछ मैसेजेस का मिस यूज ना कर पाए। इज इट क्लियर? यहां तक ये एग्जांपल क्लियर हुई है? Anyone having any question regarding this example? Then I'll move further. Okay, in practice, most systems will allow an administrator access to the mails pool directly. By the principle of least privileges, that administrator should be able to assess only the subject and objects involved in the mail queuing and delivery. As we have seen, this constraint minimizes the threats if that administrator's account is compromised. So the mail system can be damaged or destroyed, but nothing else can be. अब इसमें यह भी है कि जब आप यहाँ से एक मेल सर्वर को असेस करते हो तो आपकी अपनी मेल्स जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। आप या तो नई मेल जो है क्रिएट कर सकते हो जब आप किसी को सेंड करते हो, या आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेल्स को असेस करके उनको ओपन कर सकते हो। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेजेस, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर रहा है, वो उसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट्स का जो जितना उसको मिनिमम रिक्वायर्ड प्रिविलेज है उसका असेस दे रहा है, और उसमें क्यूइंग में भी डाल रहा है, उसको डिलीवरी भी दे रहा है, बट उसमें ये भी इंश्योर कर रहा है कि कंस्ट्रेंट्स के थ्रू कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को थ्रेट ना हो। मेल सिस्टम चाहे डैमेज हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, बट और कुछ ना हो। मेल सिस्टम जिसके थ्रू ये मेल ट्रांसफर होती है वो चाहे डिस्ट्रॉय हो जाए, बट एक्चुअल में लोगों की मेल जो है वो सेफ रहे। जिसके अगर वो सेफ रहेगी तभी आप इसके ऊपर फेथ करोगे ना, बिकॉज इट इज नाउ कंसिडर्ड एज अ लीगल डॉक्यूमेंट। अगर आपने खुद उसको डिलीट किया है, इट इज फाइन। इफ यू हैव नॉट डिलीटेड दैट मेल एंड इट शुड एग्जिस्ट इन योर मेल अकाउंट till the time you don't yourself delete it or make changes into it, तब तक वो उसको सिक्योर रखता है। Is it clear now? Any question regarding it? Any question? Okay, मैं एक सेकंड पोल भी दे रहा हूं आपको, and you have 1 minute to attempt it. Okay, now it starts. Half time is over. Be quick. Okay, time is over. So I'm sharing the result. So principle of least privileges can be applied to restricting the access rights to perform authorized activities. कौन कौन सी एप्लीकेशंस के लिए, सिस्टम्स के लिए और प्रोसेसेस एंड डिवाइसेस, ऑल ऑफ द अबव। सो इट इज़ फॉर ऑल ऑफ द अबव। सो यू शुड नो कि इसमें सारी चीज़ें ये हमने अभी पढ़ी भी हैं प्रीवियस स्लाइड में। सो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेजेस जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है एक्सेस राइट्स एप्लीकेशंस के लिए भी, सिस्टम्स के लिए भी, प्रोसेसेस एंड डिवाइसेस के लिए भी, सभी के लिए ही है वो।
So the answer is all of the above. Okay, principle of economy of mechanism, the third principle now. This principle simplifies the design and implementation of security mechanism. जब इकोनॉमी ऑफ मैकेनिज्म प्रिंसिपल की बात करते हैं तो ये मैकेनिज्म या ये प्रिंसिपल जो यूजर्स को या एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स को ये इंश्योर करता है कि डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन जो है सिक्योरिटी मैकेनिज्म की वो सिंपल ही रखी जाए. ये इंश्योर ये इसलिए करता है ताकि सिंप्लिसिटी से जो है वो अंडरस्टैंडेबिलिटी ज़्यादा आती है, इसलिए वो उसको इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जब भी आप सिक्योरिटी मैकेनिज्म करते हो उसको इजीली अंडरस्टैंडेबल होना जरूरी है. The principle of economy of mechanism states that security mechanism should be as simple as possible. आई गया वो, क्योंकि जितना भी सिंपल होगा उतना ही पॉसिबिलिटी इसकी होनी चाहिए. If a design and implementation are simple, fewer possibilities exist for errors. अगर डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन सिंपल है तो उसमें एरर्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं. द चेकिंग एंड टेस्टिंग प्रोसेस इज लेस कम्प्लेक्स. चेकिंग करना, टेस्टिंग करना वो भी कम्प्लेक्स कम होते हैं. बिकॉज फ्यूअर कंपोनेंट्स एंड केसेस नीड टू बी टेस्टेड, क्योंकि उसमें कंपोनेंट्स जितने भी आ रहे हैं या जो भी इन्वॉल्व केसेस हैं वो टेस्टिंग के दौरान भी उसको उसके मैकेनिज्म कम होगा, इसलिए वो सिंपल ही रहेगा. So complex mechanisms often make assumptions about the system and environment in which they run. जो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है उसमें फिर जो एक इमेज बन जाती है वो ये रहता है ये बहुत सिस्टम कॉम्प्लेक्स है यार, इसमें सिक्योरिटी इतनी हाई है कि इसको टाइम बहुत लग जाता है. सपोज अगर आपने काम आपका सिर्फ 5 मिनट्स का हो बट आपको एक मैकेनिज्म जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म उसके थ्रू पास जो करना होता है उसको 15 to 20 मिनट्स लगे, तो नेचुरली यू विल स्टार्ट फीलिंग इरिटेबल आफ्टर सम टाइम कि यार इसको बार बार करने में ना 15-20 मिनट तो सिर्फ एक मतलब वही बार बार चेक कर लेते हैं. जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म के थ्रू पास होना ही इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो वो एक एनवायरनमेंट जो है वो गलत हो जाता है इसमें. सो इफ दीज assumptions आर इनकरेक्ट सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स में रिजल्ट. और अगर हम ये नहीं रखते हैं सिंपल तो हमारे सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स जो है वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पे आके हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी शुरू कर देते हैं. हमें लगता है हम सिस्टम के ऊपर हमारा ना फेथ धीरे धीरे कम होना शुरू होता है. We start thinking that there is a lot of wastage of time in case of you start this particular process of this particular एक जॉब करने के लिए इतना जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म के थ्रू जाना वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इसमें. इज इट क्लियर प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी ऑफ मैकेनिज्म? यहाँ तक क्लियर है बेटा? इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताओ. सिंपलेस्ट प्रिंसिपल है ये वाला, तो क्योंकि अभी सिंपल यही कह रहा है कि सिंपल होना चाहिए और ये सबसे इजी वाला भी है कि डिजाइन और मैकेनिज्म को हमेशा सिंपल रखना चाहिए. I'll move on to the example over here. The IDENT protocol, जिसको 861 से भी represent करते हैं, sends the username associated with the process that has a TCP connection to a remote host. So what happens is there is a protocol that sends your username. Username is from where the particular process is being initiated with the TCP connection to the remote host. Means जिसको वो जाना चाहिए उसको वो साथ साथ username भी भेज रहा है. So a mechanism on host A that allows access based on the result of an IDENT protocol result makes the assumption that the originating host is trustworthy. अब उसमें जब आपका नेम आता है ना एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर प्रोसेस, तो रिमोट होस्ट क्या करता है उसको इंश्योर करता है कि ये अगर यहाँ से आ रहा है होस्ट ए का नाम आ रहा है तो वो एज्यूम कर लेता है कि होस्ट ट्रस्टवर्दी है. इफ होस्ट बी डिसाइड्स टू अटैक होस्ट ए, अब सपोज बी एक ऐसे का होस्ट है जो ए को समझ लो कि अटैक करने जा रहा है. सो व्हाट इट डज इज, एक्सक्यूज मी,
Now, moving on to this example. Now, what happens is a host B decides to attack host A. It can connect and then send an identity it chooses in response to the IDENT request. अब वो क्या कर रहा है, एक तो कनेक्शन लगा रहा है, एक वो क्या कर रहा है, जो IDENT प्रोटोकॉल है जो 861 उसके थ्रू वो अपने आप को ए होस्ट की तरह बता रहा है कि मैं ए होस्ट हूँ, ऑल्दो वो बी होस्ट है क्योंकि वो अटैक की तरह कर रहा है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिज्म मेकिंग एन इनकरेक्ट अजम्पशन अबाउट द एनवायरनमेंट. अब अगर वो होस्ट बी भी आ रहा है क्योंकि वो उस पर्टिकुलर टीसीपी कनेक्शन के थ्रू रिमोट होस्ट के ऊपर जा रहा है और वो होस्ट ए की जगह वो होस्ट बी आ रहा है, तो वो ये सोचता है कि ट्रस्ट वर्दी सोर्स से आ रहा है इसलिए जो भी आ रहा है ये ट्रस्ट वर्दी है. ऑल्दो ए को अटैक किया गया होस्ट बी से और बी ने अपनी आइडेंटिटी होस्ट ए से रिप्लेस करके उस पर्टिकुलर रिमोट होस्ट पे भेज दिया. अब रिमोट होस्ट के पास क्या आया, इंस्टेड ऑफ ए बी आया, बट वो क्योंकि वो एक ट्रस्टवर्दी मैकेनिज्म से आ रहा था, नाम आ रहा था, उसको लगा कि ट्रस्टवर्दी है इसलिए उसने उसको असेस दे दिया या उसने जो भी उसके लिए रिक्वेस्ट आई थी उसको उस रिक्वेस्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर कर दिया. सो दिस इज वेयर यू कैन से होस्ट बी को भी एक तरह का ट्रस्टवर्दी बना दिया. सो ऐसे का एक मैकेनिज्म जो है इकोनॉमी ऑफ मैकेनिज्म ये कहता है कि अगर हम सिंपल रखें बट उसमें सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग रखें तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिंपली इट इज इजी फॉर होस्ट बी टू गेट रिप्लेस होस्ट ए और वो सिंपली जो क्योंकि वो होस्ट ए नाम आ रहा है एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली रिमोट होस्ट पे, तो वो कहे हाँ अगर नाम आ रहा है तो इसका मतलब एक ऑथेंटिक सोर्स ही होगा इसलिए ट्रस्टवर्दी सोर्स होगा, उसको असेस दे दिया जाए. ऐसा नहीं होना चाहिए. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ योर इकोनॉमी ऑफ मैकेनिज्म. इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन अप टिल हियर नाउ? हाँ जी, एनी क्वेश्चन? If not, then I'll be moving on to the next principle of complete mediation. This principle restricts the caching of information, which often leads to simpler implementation of mechanisms. अब cache memory हर एक को पता है. Suppose you start using your browser, and sometimes what happens is your internet connection was not connected. Still, when you click on a particular website that you visit often, तो वो cache memory से आपको उसका home page दिखा देता है. So इसका मतलब उसने वहाँ से ही डायरेक्टली असेस दे दिया, ऑल्दो आप अभी इंटरनेट से कनेक्टेड प्रॉपर्ली नहीं हो. सो अगर हम देखें कंप्लीट मेडिएशन के अकॉर्डिंग, ये क्या करता है कि कैशिंग मैकेनिज्म को रिस्ट्रिक्ट करता है. क्यों? क्योंकि वो कहता है कि अगर कैशिंग मैकेनिज्म होगा तो उससे क्या होगा कि किसी और मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करना वो ईजी होगा. अगर वो कैश मेमोरी को ही असेस कर रहा होगा, कैश मेमोरी से उसको रिजल्ट मिल जाएगा, तो यूजर जो है वो उसको एक फेक आइडेंटिटी मिलेगी कि मेरा जो है इंटरनेट कनेक्शन लग चुका है और जो मेरे को असेस मिल रहा है वो अब सही मिल रहा है. इसलिए ये प्रिंसिपल क्या करता है, कैशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है एंड सिंपलर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैकेनिज्म्स को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है. The principle of complete mediation requires that all accesses to objects be checked to ensure that they are allowed. अब सपोज आपके पास होम पेज तो आ गया, बट आप जब उसके ऊपर कहीं क्लिक करोगे तो इट इंश्योर्स whether you are allowed an access according to that click, that ये पर्टिकुलर यूजर को ये पर्टिकुलर रिसोर्सेज का असेस है भी है या नहीं है. तो ऐसा नहीं है कि कैश मेमोरी से उठाया और डायरेक्टली आप उसको असेस दे दो. इसका एक एग्जांपल बड़ा अच्छा है, मैं आपको अपने तरफ से एक एग्जांपल देता हूँ. वन ऑफ द स्टूडेंट्स ही मेड अ प्रोजेक्ट और उस प्रोजेक्ट में ना उन्होंने एक मेजर ये इसने बताया कि सर मेरा ना प्रोजेक्ट सिक्योर है. और जब आप इसको सिक्योर कहते हो तो इसका मतलब ये है कि व्हेनेवर यू विजिट अ पर्टिकुलर पेज तो वो कैश मेमोरी में नहीं होगा और उसका असेस डायरेक्टली नहीं किया जा सकता. ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं कोई मैकेनिज्म्स लगे होते हैं. तो ही स्टार्टेड विद इट प्रोजेक्ट. तो मैंने इट वाज अ ई कॉमर्स प्रोजेक्ट. ई कॉमर्स प्रोजेक्ट का मतलब है जहाँ पे आपका जो है परचेजिंग होती है कुछ चीज़ों की. तो जब उसने स्टार्ट किया तो मैंने उसका सारा प्रोजेक्ट देखा तो वो एक सिक्योरिटी के ऊपर ही सेड दैट आई हैव वर्कड ऑन इट. सो नो डाउट ही हैड वर्कड ऑन इट, कई जगह पे बड़ी अच्छी सिक्योरिटी थी. तो मैंने उसकी टेस्टिंग के दौरान मैंने एक चेक किया कि जहाँ पे पेमेंट हो रही थी ना उस पेमेंट का मैंने यूआरएल कॉपी करके और किसी नए ब्राउजर में जाके उसको कॉपी किया और उसको डायरेक्टली एंटर मारा तो उसका वो पेज खुल गया. जब उसका पेज खुल गया तो दैट वाज अ फ्लॉ इन द सिक्योरिटी मैकेनिज्म ओवर हियर. तो उसमें वहां पे ये जो कंप्लीट मेडिएशन वाला पार्ट है ना वो नहीं हो रखा था. दैट मींस कैश मेमोरी से उसने क्या किया,
आपका जो पेज है उसका एक्सेस भी दे दिया और उसको डायरेक्टली इनफैक्ट दिखा भी दिया। जबकि जहां पे भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन, कहीं पे भी मनी की इन्वॉल्वमेंट हो, कहीं पे भी ऐसी चीज इन्वॉल्व हो जहाँ पे आपका जो परचेजिंग वाली चीजें हैं वो सारी विजिबल हो जाए, तो वो तो आपका जो है सिक्योरिटी कम हो जाती है। इसलिए ये जो कंप्लीट मेडिएशन है यही कहता है कि आपकी जो कैशिंग नहीं होनी चाहिए, और वेन एवर यू डायरेक्टली इवन कॉपी द यूआरएल ऑल्सो, तब भी उसका आना चाहिए पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर आप उसके प्रॉपर सिक्योरिटी मैकेनिज्म आ रहा है तो आपका एक फ्लो के थ्रू ही आपका पेज आएगा, अदरवाइज डायरेक्टली उस यूआरएल को कॉपी करने के बाद वो डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। सो दिस वाज दिस अ प्रैक्टिकल एग्जांपल जो एक इवन आप भी अगर कोई प्रोजेक्ट करोगे तो उसमें आप लोगों को अगर सिक्योरिटी का ध्यान रखना हो तो उस केस में ये क्लियर होना चाहिए कि जो यूआरएल कॉपी करके दोबारा से पेज नहीं खुलना चाहिए। तो वो एक इंपॉर्टेंट एक फैक्टर रहता है इसमें। दिस द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी आई विल से, नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स। ये बहुत ईजी भी है इंप्लीमेंट करना और सिंपलेस्ट भी है इसमें। Now, whenever a subject attempts to read an object, the operating system should mediate the action. Operating system अब उसमें एक तरह का मीडिएटर की तरह काम करना चाहिए जब भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो रीड करने जा रहा है यूजर। फर्स्ट इट डिटर्मिन्स इफ द सब्जेक्ट इज अलाउड टू रीड एन ऑब्जेक्ट। पहले तो उसकी वो ऑथेंटिसिटी चेक करता है कि क्या इसको परमिशंस हैं इस पर्टिकुलर प्रिविलेज की और ऑब्जेक्ट को रीड करने की। इफ सो इट प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज फॉर द रीड टू अकर। अगर ऐसे का है तो वो फिर वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रीड किया जा सकता है। If the subject tries to read the object again, the system should check that subject is still allowed to read an object. अब ये भी है, एक बार वो रीड करके गया तो आफ्टर सम टाइम, लेट्स से 1-2 आवर्स के बाद दोबारा से वही यूजर उसी ऑब्जेक्ट को रीड करने के लिए आया, तो उसको दोबारा से इंश्योर करना चाहिए क्या अभी भी ये पर्टिकुलर यूजर को रीड करने की परमिशन है। अगर है तो फिर ही अलाउ करो, क्या पता उसको अलाउ ना हुआ हो, बाद में उसकी रिसोर्सेज जो है वो डिनाई कर दिए गए हो, रीड असेस उसको डिनाई कर दिया जाए। इसका मतलब ये है ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हर बारी चेक करे कि इस पर्टिकुलर रिसोर्स को रीड करने के इसके पास परमिशन है या नहीं है। सो मोस्ट सिस्टम्स वुड नॉट मेक द सेकंड चेक। ज्यादातर क्या होता है कि सेकंड चेक नॉर्मली एक सिस्टम करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें कैश मेमोरी में उसका ऑलरेडी स्टोर होता है। सो दे वुड कैश द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट चेक एंड बेस द सेकंड असेस ऑन द कैश। सीधा ही वहां से फर्स्ट चेक को चेक किया कैश मेमोरी से, अगर उसको पिछली बार असेस दिया था तो इस बार भी उसको असेस दे दिया, सिंपली यही कर देता है। इज इट क्लियर? Any question regarding it now? Any question? If not, then I'll move further. We have an example now. When a Unix process tries to read a file, the operating system determines if the process is allowed to read the file. If so, the process receives a file descriptor encoding the allowed access. Whenever third point repeat करना, okay Kirandeep, I repeat the third point again. Wait. अब इसमें क्लियर ये है, अगर एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का मैंने ऑलरेडी बताया, सब्जेक्ट इज अ यूजर, ऑब्जेक्ट इज अ रिसोर्स, लेट्स से आप उसे प्रिविलेज भी कह सकते हो। एक यूजर ने एक ऑब्जेक्ट के लिए रीड राइट्स जो है के कॉरेस्पॉन्डिंग उसको रीड करने की एक डिमांड क्रिएट की, या उसको आप कह सकते हो असेस के लिए डिमांड क्रिएट की। हुआ क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम उसको चेक करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम पहले ये डिटरमिन करेगा कि क्या इस पर्टिकुलर यूजर को ये पर्टिकुलर प्रिविलेज या ये पर्टिकुलर रिसोर्स या ये पर्टिकुलर फाइल को रीड करने की परमिशन है। अगर उसके पास परमिशन है तो वो रिसोर्स को रीड करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं वो उसको प्रोवाइड कर देगा। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। ये तो हो गया, उसने फर्स्ट चेक किया और उसको परमिशन दे दी। आफ्टर सम टाइम 1 और 2 आवर्स आफ्टर, सेम सिस्टम है, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूजर भी वही रहा, उस यूजर ने दोबारा से सेम रिसोर्स के ऊपर रीड राइट या रीड की डिमांड की। तो अब नॉर्मली क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि अपनी कैश्ड मेमोरी से चेक करता है कि इसको पिछली बार इसको परमिशन दी थी, अगर दी थी तो डायरेक्टली उसको असेस दे देता है, जबकि ये गलत है। क्यों? क्योंकि उसमें ये चांसेस आर देयर कि उसको वो रीड परमिशन डिनाई कर दी गई हो। प्लस ये भी हो सकता है कि कोई और इंट्रूडर वो पहले वाला यूजर बन के आपको रीड परमिशन के को फोरगो करते हुए उसको रीड के लिए असेस मांग रहा हो। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि जो सेकंड टाइम भी आ रहा है तो वो कैश रिजल्ट से नहीं होना चाहिए, उसको सेकंड टाइम फिर चेक करना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम ये इंश्योर करे। इज इट क्लियर किरणदीप? हाँ जी किरणदीप, ओके फाइन। Now I'll move on to the example.
A unique process tries to read a file. Operating system determines if the process is allowed to read a file. वो determine करता है, check करता है. अगर उसको allowed है, if so, the process receives a file descriptor encoding the allowed access. उसको जो भी access देना उसको वो allow कर देता है. Whenever the process wants to read the file, it presents the file descriptor to the kernel, and the kernel then allows the access. ये आपने Unix में पढ़ा होगा, kernel होता है जिसके थ्रू आप एक फाइल को ओपन करते हो और सारी चीजें उसमें विजिबल हो जाएंगी. तो फाइल डिस्क्रिप्टर जो है कर्नल को जाएगा और कर्नल जो है वो असेस करके उस यूजर को सारी फाइल उसको रीड करने के लिए ओपन कर देगा. So if the owner of the file disallows the process permissions to read the file after the file descriptor is issued, the kernel still allows access. अब इसमें ये भी पॉसिबल है कि ओनर जो है उसने परमिशन रीड परमिशन जो है वो डिसअलाउ कर दिए, बट तब तक फाइल डिस्क्रिप्टर इशू हो चुका था और फाइल डिस्क्रिप्टर जो है वो कर्नल को चला गया. अगर फाइल डिस्क्रिप्टर इशू हो गया और कर्नल को चला गया तो फिर उस पर्टिकुलर यूजर को उस फाइल का रीड परमिशंस मिल गई, वो देखना शुरू हो जाएगा, उसको असेस जो है फिर भी मिल जाएगा. इसलिए दिस स्कीम वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीट मीडिएशन बिकॉज द सेकंड असेस इज नॉट चेक्ड. ये सेकंड टाइम हुआ है, क्यों? क्योंकि उसके डिस्क्रिप्टर इशू हो चुका था ऑलरेडी. कर्नल उसके को जो अलाउ कर रहा है फाइल को ओपन करने के लिए उस यूजर के लिए, क्योंकि पहली बार उसने जब आया था तो उसने चेक कर लिया था, उसने फाइल डिस्क्रिप्टर इशू भी कर दिया, बट सेकंड टाइम जब आया तो रीड असेस जो है उसको डिनाई कर दी गई थी, उसकी परमिशन डिनाइड थी. फिर भी क्योंकि उसका फाइल डिस्क्रिप्टर ऑलरेडी इशूड था, कर्नल को ऑलरेडी उसको मैसेज गया हुआ था, तो उसने उसी के थ्रू डायरेक्टली उसको रीड करने की के लिए फाइल ओपन करवा दी. क्यों? क्योंकि उसने कैश से ली. सो द कैश वैल्यू इज यूज्ड द रिजल्टिंग इन द डिनायल ऑफ असेस बीइंग इनइफेक्टिव. और इसका मतलब डिनायल ऑफ जो सर्विस था, डिनायल ऑफ जो असेस था, उसको वो इनइफेक्टिव बना देता है. क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, उसने प्रीवियस वाली फाइल डिस्क्रिप्टर को उठाया, प्रीवियस वाला ही उसने कैश मेमोरी से उसकी कर्नल को जो इंफॉर्मेशन गई थी उस पर्टिकुलर फाइल को रीड करने की, उसी को उठाया और सीधा ही उसको यूजर को असेस दे दिया. और ये गलत है, इट इज इनइफेक्टिव. इसलिए ये जो कहा जाए तो ये एक जो प्रिंसिपल है कंप्लीट मीडिएशन का, उसको ये फॉलो नहीं करता, ये वाला सिक्योरिटी मैकेनिज्म. ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? Another example is domain name service. DNS caches information mapping host names into IP addresses. If an attacker is able to poison the cache by implanting records associating a bogus IP address with a name, and the host will route the connection to another host incorrectly. कई बार क्या होता है कि वो सेम डोमेन नेम सर्वर के कॉरेस्पॉन्डिंग सर्विस के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या करता है कि एक और IP एड्रेस बैकएंड के ऊपर जो है वो उसके साथ कनेक्ट कर देता है. और जब भी एक होस्ट उस पर्टिकुलर डीएनएस को यूज करता है वो बोगस आईपी एड्रेस पे चला जाता है, क्योंकि उसका नेम ऑलमोस्ट सिमिलर लगता है. ऑलमोस्ट सिमिलर लगता है, ये ध्यान रखना. जैसे एग्जांपल है फ्लिपकार्ट है, FLIPKART है, तो सपोज एग्जांपल उसमें FLIPCART आपने टाइप किया, तब भी आपका वो सेम पेज आ रहा है होम पेज. तो आपने ये इंश्योर नहीं किया कि ये एक्चुअल वाला फ्लिपकार्ट वाला है या कोई और है, तो वो बोगस भी हो सकता है. तो बोगस आईपी इसलिए हो गया क्योंकि उसने एक सिमिलर होम पेज बना के सारे कलर कॉम्बिनेशन सेम यूज करके फ्लिपकार्ट के लिए KART के बजाय CART यूज कर लिया. एग्जांपल ले रहा हूँ, इट कैन बी एनीथिंग एल्स ऑल्सो, किसी और का भी ऐसे ही होता है. सो उसमें ये चीजें जो हैं वो एक कनेक्शन को और होस्ट को एक इंप्रेशन देती है कि वो एक्चुअल वाला यूज कर रहा है. उसमें अगर वो उसने पेमेंट्स कर दी तो वो उस अकाउंट में चले जाएंगी जिसमें कि वो मलेशियस यूजर था, वो आपको कोई भी चीज जो है अवेलेबल नहीं होगी. सो कंप्लीट मीडिएशन ये भी एक अनदर एग्जांपल है, डीएनएस भी इसमें रहता है. एनी क्वेश्चन अप टिल हियर नाउ? बोगस आईपी मींस, बोगस आईपी होता है बेटा जो हमारे डीएनएस के कॉरेस्पॉन्डिंग डोमेन नेम्स होता है ना, जैसे आपका फ्लिपकार्ट है, इनको एक ना फिक्स्ड आईपी मिलता है. फिक्स्ड आईपी होता है कि इनका बैकएंड पे देखो आईपी आप हर एक का याद नहीं रख सकते. आपने फ्लिपकार्ट को साइट खोलनी है तो flipkart.com लिखते हो, तो उसका एक फिक्स्ड आईपी है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑटोमेटिकली वो फ्लिपकार्ट की साइट खोलता है. सो बोगस आईपी ये होता है कि वो आईपी एड्रेस कोई और है और वो उस पर्टिकुलर नेम लगता तो वो नेम सेम ही था फ्लिपकार्ट जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, बट वो बोगस आईपी मींस क्योंकि वो एक्चुअल वाला आईपी नहीं है, वो वाला आईपी है जो आपने उस पर्टिकुलर डीएनएस के साथ कनेक्ट किया है, जो कि लगता सिमिलर था, फ्लिपकार्ट के स्पेलिंग में गड़बड़ की हुई है और वो उसकी तरफ रूट कर जाएगा. सो ये भी एक गलत वो एक मेथड होता है. ये बेसिकली आपको इंश्योर ये करना चाहिए कि जो भी आप ओपन करते हो वो सही हो.
सो ये कई बारी इवन इसके थ्रू फ्रॉड्स भी हुए हैं, क्योंकि लोग जो है वो प्रॉपरली उसे देख नहीं पाते, इतना छोटा सा जो स्पेलिंग मिस्टेक है, और वो बोगस आईपी के ऊपर जाके, और वो बोगस आईपी वो होता है जिसका मतलब जिसको एक इंट्रूडर या हैकर मिसयूज कर रहा है लोगों की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अपने तरफ रीरूट करने के लिए। ठीक है बेटा? Okay, then I'll move on to the principle of open design now. This principle suggests that complexity does not add security. Complexity जो है वो security को add नहीं करती, ये भी important है। ऐसा नहीं होता है कि एक हमारी एक human nature है, हमें ये लगता है जो चीज़ complex है वो ज़्यादा secure होगी, so ऐसा कुछ नहीं है। Simplicity जितनी होगी और शायद security उतनी ज़्यादा high भी हो सकती है। so इसलिए ऐसा कोई भी feeling नहीं होनी चाहिए कि complexity जो है वो ज़्यादा security provide करेगी और वो और security add कर जाती है। The principle of open design states that the security of a security mechanism should not depend on the secrecy of its design and implementation. उसकी जो secrecy होती है ना, naturally design और implementation secret रखा जाता है, ये important है, but ऐसा नहीं होना चाहिए कि design जो है mechanism जो है उसका ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी dependability design और implementation पे बहुत ज़्यादा हो, तो इसलिए उसको ऐसे करना चाहिए ताकि हमारा जो design और implementation पे dependency इतनी ज़्यादा ना हो। हाँ, ठीक है। Now, designer and implementers of a program must not depend on the secrecy of the details of the design and implementation to ensure security. जो भी डिजाइनर है, जो कि एक या इम्प्लीमेंटर है एक प्रोग्राम का, उसको किसी भी एंगल पे या किसी भी टाइम के ऊपर सीक्रेसी के डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर टोटल जो उसकी डिटेल्स के ऊपर नहीं डिपेंडेंट होना चाहिए सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। मैकेनिज्म इतना सिंपल होना चाहिए कि उसको पता हो कि हाँ ये होगा तो बस सिंपली सिक्योरिटी है हमारी, उसकी क्या डिजाइन की गई, क्या इंप्लीमेंटेशन की गई, कैसे की गई, डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, डिटेल्स के ऊपर उसकी डिपेंडेबिलिटी नहीं है एक यूजर की। Others can search out such details either through the technical means or such as disassembly or analysis, or through a non-technical means such as searching through the garbage receptacles for source coding listings called dumpster diving. अब ये क्या हो सकता है? अब क्योंकि एक ना ह्यूमन नेचर है, वो ना ट्राई टू फाइंड आउट, ह्यूमन नेचर क्या करता है, कोशिश करता है कि यार ये कैसे हुआ है कि डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन में सिक्योरिटी जो है ये कैसे इंश्योर करते हैं, तो वो क्या करता है, सर्च आउट करता है। तो उसमें दूसरा तरीका ये है कि डिजाइन की डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, पर आप जनरल ये फाइंड आउट कर सकते हो डिटेल्स कि टेक्निकल मींस के थ्रू इसको कैसे इसका असेंबली की गई है, इसको कैसे डिसअसेंबल करते हैं, कैसे इसका एनालिसिस करते हैं, कौन से नॉन टेक्निकल मींस हैं जिसके थ्रू ये सर्च की जा सकती है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके थ्रू आपको आइडिया लग सकता है कि ये मैकेनिज्म जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म उसको कैसे इंप्लीमेंट किया गया। इसको हम डंपस्टर डाइविंग इसलिए कहते हैं कि सोर्स कोड की कुछ लिस्टिंग्स आपको मिल जाती हैं, कुछ एक ऐसे आइडियाज मिल जाते हैं कि इसको ऐसे इंप्लीमेंट किया हो सकता है। क्योंकि डिजाइन इंप्लीमेंटेशन की जो अगर मैकेनिज्म का पता लगना तो ठीक है, बट उसकी एक्चुअल में क्या कोडिंग हो रखी है वो नहीं कभी भी आपको मिलेगी। अगर वो मिल जाएगी फिर तो नेचुरली हैकर भी उसको अनकैश कर पाएगा। सो वो सिर्फ एक ओवरऑल एक उसको एक आइडिया मिल जाएगा कि मैकेनिज्म वर्क कर रहा है, बट वो कैसे वर्क कर रहा है, कौन सा उसमें एल्गोरिदम लगा रखा है, कौन सा सिक्योरिटी मैकेनिज्म लगा रखा है जिसके थ्रू ये इंप्लीमेंट हो रहा है, उसकी डिटेल्स नहीं आएंगी। So if the strength of the program security depend on the ignorance of the user, a knowledgeable user can defeat that security mechanism. So the term security through obscurity captures this concept exactly. अब इसमें ये भी आ गया, अगर हम कहते हैं कि जो स्ट्रेंथ ऑफ सिक्योरिटी जो प्रोग्राम है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है कि यूजर इग्नोरेंट है, यूजर को कुछ नहीं पता, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर नॉलेजेबल यूजर होगा तो फिर तो वो सिक्योरिटी मैकेनिज्म को सरपास कर ही जाएगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि नॉलेजेबल यूजर है तो वो आपका प्रोग्राम सिक्योरिटी को सरपास कर पाए। वो प्रोग्राम सिक्योर होना चाहिए, उसकी नो डाउट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहता है कि काफी परसेंटेज जो यूजर है वो इग्नोरेंट है सिक्योरिटी मैकेनिज्म के बारे में, बट जो कुछ परसेंटेज लोग जो इसको जानते हैं, जो नॉलेजेबल यूजर हैं, वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उनके लिए सिक्योरिटी को बाईपास करना ईजी हो। सो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओपन डिजाइन जरूर हो, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि नॉलेजेबल यूजर उसको इजीली सरपास कर पाए। सो द टर्म सिक्योरिटी थ्रू ऑब्सक्योरिटी कैप्चर्स द कांसेप्ट एग्जैक्टली, इसलिए हम कहते हैं सिक्योरिटी थ्रू ऑब्सक्योरिटी मींस सिक्योरिटी है, बट ऐसा नहीं है ऑब्सक्योर मींस इतनी भी इजी नहीं है कि कोई भी इसे अंडरस्टैंड करके उसको बाईपास कर जाए। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन अप टिल हियर? Okay, then I'll move on to further into this concept only. This is especially true for of cryptographic software and systems.
Because cryptography is a highly mathematical subject, companies that market cryptographic software or use cryptography to protect user data frequently keep their algorithms secret. Experience has shown that such secrecy adds little, if anything, to the secrecy of the system. Worse, it gives an aura of strength that is all too often lacking in actual implementation of the system. आपने क्रिप्टोग्राफी पढ़ी भी हुई है पहले, और क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है कि नॉर्मली एक जो यूज़र अगर इसको असेस मिल भी जाए तो उसको डाटा जो नज़र आएगा वो इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा, क्योंकि वो क्रिप्टोग्राफी के थ्रू डाटा क्रिप्टेड है, एनक्रिप्ट किया हुआ डाटा है, डीक्रिप्ट करके ही उसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है। अब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स प्रोवाइड करती हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि अपना डाटा सिक्योर करना चाहते हैं, तो वो ये इंश्योर करते हैं कि उनका जो एल्गोरिदम है वो सीक्रेट रहे, और वो उसकी सीक्रेसी जो है वो इजीली जो है कोई भी उसको एनकैश ना कर पाए। और ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है वर्स्ट सिनेरियो जो उन्होंने कहा है कि उनका ये होता है कि एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम जो है वो उनको पता लग जाएगा, बट उसको ये नहीं पता लगेगा कि वो वाकई एल्गोरिदम वर्क कैसे कर रहा है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं पे एल्गोरिदम ही ऐसा होता है जो कि क्रिप्टोग्राफी के थ्रू आपकी जो डाटा को इनक्रिप्ट करता है, और एक ऑर्गेनाइजेशन का जो इंक्रिप्शन मेथड है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कभी भी मैच नहीं करेगा। सो ये जो क्या इंश्योर कोशिश ये करते हैं कि जितनी भी क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स यूज करते हैं उसमें कहीं ना कोई ऐसे का छोटा सा चेंज कर देते हैं जिससे कि टोटली क्रिप्टोग्राफिक मैकेनिज्म जो है वो दूसरे से अलग हो जाता है। एल्गोरिदम उसके जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें वो उसकी सीक्रेसी को मेंटेन करते हैं। कीपिंग क्रिप्टोग्राफिक कीज एंड पासवर्ड सीक्रेट डज नॉट वायलेट दिस प्रिंसिपल। अब हमने ये कहा है कि ओपन डिजाइन होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि जो क्रिप्टोग्राफिक कीज है या पासवर्ड है उनको भी इजीली ओपन डिजाइन में मीन सबको दिखा दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक एल्गोरिदम की ये ऐसी है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि ओपन डिजाइन होना चाहिए, पर अगर आपने क्रिप्टोग्राफिक की और पासवर्ड को सिक्योर करके रखना है तो इट इज ओके, ये प्रिंसिपल भी कहता है उसको तो नेचुरली आपने रखना ही है सिक्योर। However, keeping this enciphering and deciphering algorithm secret would violate it. हाँ, ये हो सकता है कि उसको एनक्रिप्शन मेथड या डिसिफरिंग एल्गोरिदम का जो सीक्रेट रखना वो वायलेट करता है, बट एक्चुअल में डाटा उसकी कीज और पासवर्ड्स को सेव करना वो वायलेट नहीं करता। एल्गोरिदम जो है वो नो डाउट जो आप यूज कर रहे हो वो सीक्रेट रखना एक वायलेट करता है इस डिजाइन को, बट उसमें जो एक्चुअल में उसमें डाटा कन्वर्ट होके एनक्रिप्ट होके डाटा रखा गया या उसके लिए जो की यूज की जाती है प्राइवेट की उसको सेव करके रखना वो इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को वायलेट नहीं करता है। सो ये थोड़ा सा इसमें मतलब आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कंसेप्ट में। फिर भी ये भी इंपॉर्टेंट है, एल्गोरिदम्स को हम सीक्रेट जो है वो ऑफ कोर्स रखते हैं उन लोगों से हैं जो इसको इनकैश कर सकते हैं। इसका मतलब ये है जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आपने यहाँ पे जैसे पीछे भी व्हाट्सएप का भी आया था कि वो ना अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी चेंज कर रहा है, तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं ये सिक्योरिटी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। तो उसमें वो एनसिफरिंग और डिसिफरिंग एल्गोरिदम्स जो है वो डिस्कस करता है, वो उनको अपने जो एल्गोरिदम्स को जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेता है। नो डाउट वो इन चीज की अप्रूवल लेता है एल्गोरिदम्स की, एनसिफरिंग और डिसिफरिंग एल्गोरिदम की, बट उसकी जो क्रिप्टोग्राफी की और पासवर्ड है उनको वो सेव रखता है, वो नहीं इसको दिखाने की जरूरत पड़ती है इसको। तो इज इट क्लियर? यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन तो बताओ। फर्दर, इश्यू ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एंड ट्रेड सीक्रेट्स कॉम्प्लिकेट द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। अब कई बार क्या होता है प्रोप्राइटरी राइट्स आते हैं, प्रोप्राइटरी राइट्स होते हैं कि मेरे पास राइट्स है एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के, इसलिए मैं वो एल्गोरिदम या उसके क्रिप्टोग्राफिक कीज या उसकी जो डाटा है या पासवर्ड है उनको किसी को भी नहीं दूंगा। तो वो एक प्रोप्राइटरी राइट जो है वो भी एक अलग मैकेनिज्म है जो एक पर्टिकुलर इवन जो इनसिफरिंग डिसिफरिंग एल्गोरिदम्स को सीक्रेट रखने के लिए परमिशन दे देता है। सो इन सम केसेस companies may not want their design made public, so lest their competitors use them, ताकि उसके competitors उसको use ना कर पाए। So principle that requires that design and implementation be available to people barred from disclosing it outside the company। अब अगर वो किसी को दिखाते भी हैं एल्गोरिदम तो उसके साथ साथ एक लीगल क्लॉज ये रहता है कि इनमें से अगर किसी ने भी हमारा एल्गोरिदम जो है उसको बाहर डिस्क्लोज किया तो उनके ऊपर लीगल एक्शन होगा, और इसलिए वो ये चीज़ को इंश्योर करते हैं। सो वो पीपल को बार करते हैं अंडर लीगल रूल्स कि उनके पास प्रोप्राइटरी हैं, इसके मींस राइट्स हैं इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम को चलाने के लिए, इस सीक्रेटली इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, बट अगर वो इसको किसी को दिखाते भी हैं तो उसको आगे से वो इंश्योर करते हैं कि वो आगे से इसको उनके कंपटीटर्स को डिस्क्लोज ना करें। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन आप टिल हियर? एनी क्वेश्चन?
ओके, देन प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ प्रिविलेजेस, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा था. द प्रिंसिपल इज रिस्ट्रिक्टिव बिकॉज इट लिमिट्स द access टू द सिस्टम एंटिटीज. ये रिस्ट्रिक्टिव है और इसलिए क्योंकि ये एक सिस्टम की एंटिटीज को access को रिस्ट्रिक्ट करता है, मींस उतना ही access देता है जितना रिक्वायर्ड है. So the principle of separation of privileges states that the system should not grant permissions based on a single condition. एक ही condition नहीं होनी चाहिए, ये condition अगर satisfy होगी तो इसको access दे दिया जाए. So this principle is equivalent to separation of the duty principle. Company checks for more than $75,000 must be signed by two officers of the company. If either does not sign, the check is not valid. The two conditions are the signature of both officers. अब सपोज एक ऐसी कंसर्न है जो कि पेमेंट्स करती है लोगों को, मीन्स अपने नॉर्मल परचेजिंग और सेलिंग हो रही है, बट उसमें कोई एक मैनेजर है, उसको राइट देना पड़ेगा चेक के ऊपर साइन करने का. तो वो कंपनी क्या कर रही है, उसमें दो बंदों का इंश्योर करती है कि, और वो बैंक को लिख के दे देती है कि व्हेनेवर यू हैव टू पास दिस चेक यू हैव टू मेक इट श्योर कि दीज टू पर्सन्स कंसर्न्ड दे शुड हैव सिग्नेचर ऑन अ पर्टिकुलर चेक. अगर दोनों के साइन होंगे तभी आप इसको पेमेंट को पास करोगे, अदरवाइज ये नहीं होंगे. मींस दोनों ऑफिसर्स के साइन होने जरूरी है, ये कंडीशन मैच होनी चाहिए. सो ये एक तरह का प्रिंसिपल ये भी बता रहा है कि उसकी ड्यूटी क्या है. एक कंपनी का एक एग्जांपल सिंपल दिया, ये नहीं होना चाहिए एक ही से सीधा हो जाए. दो का मतलब ये है कि दोनों की को ये पता होना चाहिए कि कितनी पेमेंट हो रही है और किसको हो रही है. दोनों जो अगर चेक साइन करेंगे तो नेचुरली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी उसको पढ़ना और इंश्योर करना कि जो भी चेक साइन हो रहा है वो सही हो रहा है. सो सिमिलरली सिस्टम्स एंड प्रोग्राम्स granting access to resources should do so only when more than one condition is met. तो इसी तरह सिस्टम और प्रोग्राम्स में भी होना चाहिए कि जब भी वो किसी भी रिसोर्स का असेस ग्रांट करने जा रहे हैं तो वो एक ही कंडीशन के पे नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा कंडीशन पे होना चाहिए. सो दिस प्रोवाइड्स अ फाइन ग्रेन्ड कंट्रोल ओवर द रिसोर्स एज वेल एज एडिशनल एश्योरेंस दैट द असेस इज ऑथराइज्ड. सिंपली वो इंश्योर करते हैं कि एडिशनल एश्योरेंस करते हैं कि असेस की ऑथराइजेशन है, और प्लस एक से ज्यादा अगर उसकी कंडीशन मेट हो गई हैं तो हम इस पर्टिकुलर रिसोर्स का असेस जो है वो एक यूजर को दे देंगे. इज इट क्लियर? ये सबसे इजी है ये भी. फिर भी अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो बताओ. इफ इट इज क्लियर यू कैन राइट डाउन क्लियर मैसेज. Anyone having question? Okay, then I'll move further. Example of this. On Berkeley-based version of Unix operating system, users are not allowed to change from their accounts to root account unless two conditions are met. अब आपने अगर यूनिक्स पढ़ी हुई है तो उसमें ना रूट अकाउंट में जाने की परमिशन होती है अगर आपके पास उसके पासवर्ड है. तो यूजर्स को डायरेक्टली, अब तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा हो गया कि आप डायरेक्टली रूट अकाउंट में जा सकते हो, बट एक बर्कले का वर्जन आया था यूनिक्स का जिसमें ना रूट अकाउंट पे जाने के लिए दो कंडीशंस को होना जरूरी था. द फर्स्ट कंडीशन इज दैट यूजर नोज द रूट पासवर्ड. एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, रूट पासवर्ड पता होगा तभी जाएगा. सेकंड कंडीशन इज दैट द यूजर इज द व्हील ग्रुप, दैट इज ग्रुप ऑफ GID0. अब वहाँ पे ना एक और कंडीशन लगा रखी है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ यूजर्स हैं जिनका GID0 उनको असाइन किया गया है. अगर वो पर्टिकुलर यूजर उस GID0 वाले ग्रुप का पार्ट है तो फिर उसको अगर रूट पासवर्ड पता भी है साथ में सेकंड, तो फिर उसको वो रूट का एक्सेस मिलता है, अदरवाइज नहीं. अब ये भी हो सकता है कि रूट का पासवर्ड पता हो बट वो पर्टिकुलर उस GID0 ग्रुप का मेंबर ना हो, उसका पार्ट ना हो. इसलिए दो कंडीशंस जब मैच होंगी तभी यूजर को एक पर्टिकुलर रूट का अकाउंट का एक्सेस मिलेगा, नहीं तो नहीं होगा. सो मीटिंग ईदर कंडीशन इज नॉट सफिशिएंट टू एक्वायर रूट एक्सेस, मीटिंग बोथ कंडीशंस इज रिक्वायर्ड. सो एक एग्जांपल इन्होंने एक दी है जो कि एक बर्कले वर्जन था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें ये पहले चलता था. इज इट क्लियर नाउ? एनी क्वेश्चन अप टिल हियर? Now, principle of least common mechanism. Now, this principle is restrictive because it limits the sharing. ये restrictive है क्योंकि ये sharing को limit out कर रहा है. The principle of least common mechanism states that the mechanisms used to assess resources should not be shared. अब क्योंकि ये एक common mechanism रहता है और इसमें assess resources जो है वो उतने ही देने चाहिए जितने की एक particular यूजर को रिक्वायर्ड है. तो इसमें लीस्ट कॉमन मैकेनिज्म ये कहता है कि मैकेनिज्म यूज टू असेस रिसोर्सेज शुड नॉट बी शेयर्ड. जितने भी मैकेनिज्म वो शेयर नहीं होने चाहिए. लोगों को ये नहीं पता होना चाहिए कि किस मैकेनिज्म के थ्रू आपको
ये रिसोर्स मिल रहा है. So sharing resources provides a channel along with the information along which information can be transmitted, and so such sharing should be minimized. क्योंकि अगर शेयरिंग करते हैं ना तो इसका मतलब ये है कि उसके थ्रू आप उन लोगों को भी एसेस दे रहे हो जो कि एज एन इंट्रूडर भी एक्ट कर सकते हैं. इसलिए शेयरिंग को मिनिमाइज करना चाहिए, क्योंकि शेयरिंग जो है ना वो आपकी सिक्योरिटी को कम करता है. So in practice, if the operating system provides support for virtual machines, the operating system will enforce the privilege automatically to some degree. और अगर इन प्रैक्टिस ऐसा होता है कि कोई वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन जो होती हैं जिसके थ्रू आप एक इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो किसी सिक्योरिटी मैकेनिज्म का, तो अगर आपकी कोई ऐसी की मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप इंश्योर कर रहे हो एक वर्चुअल मशीन के थ्रू, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो इंश्योर करता है कि जितने भी प्रिविलेजेस का असेस एक पर्टिकुलर डिग्री तक असेस अलाउड है उसी को अलाउ किया जाए, रेस्ट इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड. ये आपने पीछे भी एक पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो हर बारी एक यूजर को एक प्रिविलेज का एक ऑब्जेक्ट का असेस देने से पहले हर बारी उसको इंश्योर करेगा कि इसको ये प्रिविलेज है या नहीं. तो यहाँ पे भी लीस्ट कॉमन मैकेनिज्म यही कह रहा है कि प्रिविलेज ऑटोमेटिकली सम डिग्री का जो है वो इन्फोर्स किया जा सकता है इसमें. अदरवाइज इट विल प्रोवाइड सम सपोर्ट बट नॉट कंप्लीट सपोर्ट. अब इसमें अगर सपोज हम ये इंश्योर ना करें कि लीस्ट कॉमन मैकेनिज्म के थ्रू कि जो भी हमने मिनिमम रिसोर्सेज को का असेस पर्टिकुलर यूजर्स को देना है वो थ्रू शेयर ही हो, चाहे जो शेयर भी हो तब भी शेयरिंग मिनिमम जरूर करनी है, बट शेयरिंग अलाउ करनी पड़ती है क्योंकि जहाँ रीड मैकेनिज्म है वहाँ जरूरी है. बट वो जितनों को भी शेयर किया गया ये इंश्योर करना चाहिए कि उनको भी इस पर्टिकुलर रिसोर्स के ऊपर एक पर्टिकुलर जैसे आप कह सकते हो प्रिविलेज, चाहे वो रीड प्रिविलेज है, वो अलाउड होना चाहिए. सो लीस्ट कॉमन मैकेनिज्म ये इंश्योर करता है कि रिसोर्सेज जो है ऑल्दो दे आर बीइंग शेयर्ड दे शुड बी मिनिमम आल्सो, प्लस उसमें जो पर्टिकुलर शेयरिंग के दौरान जो भी असेस है वो उसको होना भी चाहिए. इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है बेटा? एनी क्वेश्चन अप टिल हियर? Okay, I'll move on to the example part over here. इससे थोड़ा और क्लैरिटी बढ़ जाएगी. A website provides electronic commerce services for a major company. Attackers want to deprive the company of revenue it obtains from that website. वो जो रेवेन्यू से हो रहा है ना, रोज की रोज आप पेमेंट करते हो ऑनलाइन, उसको वो डिप्राइव करना चाहता है एक अटैकर. They flood the site with the messages and tie up the electronic commerce services. वो क्या करते हैं, बहुत सारे मैसेजेस से आपकी साइट को फ्लड कर देते हैं. फ्लड मीन्स बहुत सारे मैसेज भेज देते हैं. उससे क्या होता है, ई कॉमर्स की सर्विस जो है वो थोड़ी देर के लिए नॉर्मल यूजर को, क्योंकि वो डिले हो रहा है ना, डिले के कारण उसको मिलनी शुरू बंद हो जाती है. So legitimate customers are unable to access the website and as a result they take their business elsewhere. अब आपको सपोज ऐसी की चीज कोई फ्लिपकार्ट के ऊपर हो गई, आपने कोई चीज अभी इमीडिएटली परचेज करनी बहुत जरूरी थी और आपको वो फ्लिपकार्ट के ऊपर कुछ अटैक हो रखा है, आपकी जो ट्रांजैक्शन है या आप जो आप करना चाहते हो वो कंप्लीट नहीं हो पा रही, तो आप क्या करते हो, थोड़ी देर देखते हो तो आप शिफ्ट होकर अमेजोन पे चल जाते हो. एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई और पे चल जाते हो. उससे क्या हुआ कि वो जो बिजनेस है किसी और तरफ चला गया, इसलिए क्या हो गया, कंपनी को लॉस हो रहा है. और ये तो एक बंदे की बात कर रहा हूँ, एक यूजर की. देयर कैन बी अ नंबर ऑफ यूजर्स हु आर डिप्राइव्ड दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म ऑफ परचेज फॉर सम टाइम. इसका लॉस जो है एक ई कॉमर्स कंपनी को बहुत ह्यूज हो जाएगा. सो हियर द शेयरिंग ऑफ द इंटरनेट विद अटैकर्स साइट्स कॉज द अटैक टू सक्सीड. इसलिए क्योंकि अटैकर के साथ जो इंटरनेट शेयर हो रहा है उसके कारण जो है ये अटैक सक्सीड हो पा रहा है. The appropriate countermeasures would be to restrict the attacker's access to the segment of the internet connected to the website. अब हमने क्या किया है, हमें एक मैकेनिज्म ऐसे का जरूर हमारे उसमें वेबसाइट के ऊपर होना चाहिए, ई कॉमर्स में वेबसाइट पे होना चाहिए, जिससे कि एक जो अटैकर है उसको एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर वेबसाइट उसका असेस नहीं मिलना चाहिए. सो टेक्निक्स फॉर डूइंग इज इंक्लूडिंग प्रॉक्सी सर्वर सच एज Purdue SYN इंटरमीडियरी और ट्रैफिक थ्रॉटलिंग. कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है जो कि बेकार ट्रैफिक होता है, जिसे कहते हैं हम सिर्फ एक क्यू आपकी को भरने के लिए. आपने देखा होगा जब भी आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाते हो या रेलवे जगह पे या एयरलाइन पे, जो लोग मैनुअली वहाँ पे टिकट परचेज कर रहे हैं तो वहाँ एक क्यू लगी होती है. सो उस क्यू में जैसे जैसे आप बारी आती है तो आप उसको अपनी टर्न के अकॉर्डिंगली अपनी परचेज करते हो टिकट. तो इसका मतलब वो क्यू अगर भर दी जाए उन लोगों से जो एक्चुअल में टिकट नहीं परचेज कर रहे, तो आपको बारी आने में और देर हो जाएगी और आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी. सो सिमिलरली ओवर हियर जो अटैकर होता है उसका पर्पस ही यही होता है कि क्यू को इतनी सारी रिक्वेस्ट के साथ जो है वो भर दिया जाए ताकि जो एक्चुअल यूजर है उनको एक्सेस जो है वो डिनाइड होता जाए. इससे क्या हो रहा है,
कि जो नेटवर्क है वो एक तरह का जैम हो गया और जो ट्रैफिक है इतना ज्यादा हो गया कि जिसके कारण यूजर जो है वो इरिटेट होके किसी और वेबसाइट पे चला जाएगा, किसी और जगह पे जाके परचेजिंग शुरू कर देगा। उसके लिए क्या किया गया, कुछ एक ऐसी टेक्निक्स होती हैं जैसे पर्ड्यू S1 इंटरमीडिएट होता है या ट्रैफिक थ्रॉटलिंग होती है, जिसके थ्रू आप इंश्योर करते हो कि ऐसे का कोई भी यूजर जो कि आपकी क्यू को फिलअप करना चाहे बहुत अनड्यू रिक्वेस्ट से, वो ना हो पाए। So the former targets suspect connections and the latter reduces the load of the relevant segment of the network intermediary indiscriminately. So ये दोनों अपना अपना काम करते हैं ताकि इंश्योर करते हैं कि कभी भी ऐसे का टाइम ना आए जिसमें कि आप उसको ट्रैफिक को के थ्रू डिनायल ऑफ एक्सेस जो है, जो कि अटैक होता है, वो ना हो, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक ना हो पाए। इज इट क्लियर? यहां तक अगर देखो कोई क्वेश्चन है तो, एनी क्वेश्चन अप टिल हियर? If it is clear, you can write down messages on your chat. Few of you can write it over there. Okay, it is fine. I'll move further now. Principle of psychological acceptability. Now, this principle recognizes the human element in a computer system. अब क्योंकि ह्यूमन एलिमेंट के बिना कोई भी कंप्यूटर सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यू नो इट कि ह्यूमन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो ह्यूमन एलिमेंट को रिकॉग्नाइज करता है ये प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। क्योंकि अगर ह्यूमंस एक्सेप्ट करेंगे सिक्योरिटी मैकेनिज्म को, तभी आपकी सिक्योरिटी मैकेनिज्म की आप कह सकते हो कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसको आप सक्सेसफुल मान सकते हो। So the principle of psychological acceptability states that security mechanism should not make the resource more difficult to assess than if the security mechanisms were not present. अब इतना ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं कर देना ताकि लोग ये सोचना चाहिए इससे अच्छा तो यार ये ना होता सिक्योरिटी मैकेनिज्म तो अच्छा था, सीधा ही असेस तो मिल जाता। होना चाहिए सिक्योरिटी मैकेनिज्म सिंपल होना चाहिए, इजी होना चाहिए और इजीली उसका असेस मिल जाना चाहिए, तब तो साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेबिलिटी होगी। अगर उसको डिफिकल्ट कर दोगे तो फिर तो वो पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी और लोग जो है उसको अवॉइड करेंगे। So configuring and executing a program should be as easy and as intuitive as possible, and any output should be clear, direct and useful. कॉन्फ़िगर करना या किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना वो बहुत इजी होना चाहिए, इजीली उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ, और कोई भी आउटपुट जो उसकी आ रही है वो क्लियर होनी चाहिए, डायरेक्ट होनी चाहिए और यूजफुल होनी चाहिए यूजर के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए इनमें से कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स हो। So if a security related software is too complicated to configure, system administrators may unintentionally set up the software in a non-secure manner. अगर एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करना और उसको वहाँ पे उसको पूरे उसकी जो रिसोर्सेज के ऊपर सिक्योरिटी चेक लगाना इतना कॉम्प्लेक्स हो, तो क्या करेगा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, उसको अवॉइड ही करेगा। वो कहेगा यार इससे अच्छा तो नो अनसिक्योर रहे तो अच्छा है, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टू इम्प्लीमेंट इट, क्योंकि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। Similarly, security-related user programs must be easy to use and must output understandable messages. एक उसके user program easy to use भी होने चाहिए और कोई understandable messages आने चाहिए। ऐसा नहीं आना चाहिए मैसेज जो कि क्लियर ही ना हो कि क्या बोल रहे हैं, क्या इसका पर्पस है। So if a password is rejected and the password changing program should state why it was rejected rather than giving a cryptic error message. पासवर्ड रिजेक्ट किया तो उसके बाद ये कर देना चाहिए कि हाँ पासवर्ड नॉट मैचिंग या पासवर्ड इज इनकरेक्ट। अगर वो एक इनक्रिप्टेड सा मैसेज आ जाएगा और वो आपको क्लियर ही ना हो कि एरर क्या आ रही है, तो आप उसको कंफ्यूज हो रहोगे, यार मैं तो हर बार पासवर्ड ठीक दे रहा हूँ, बट आपको ये नहीं पता लग रहा कि आप एक्चुअल में पासवर्ड गलत दे रहे हो। सो आपका जो पासवर्ड रिजेक्शन का जो मैसेज है वो भी क्लियर वाला होना चाहिए। So if a configuration file has an incorrect parameter, the error message should describe the proper parameter. Error message में ये तो पासवर्ड वाला हो गया, कोई और भी error message हो तो वो क्लियर होना चाहिए। So आपने देखा होगा रेकल के केस में ओरा समथिंग जो है वो एरर मैसेजेस आ जाते हैं और समटाइम्स दे आर नॉट वेरी मच अंडरस्टैंडेबल आल्सो, ऑल्दो उसके ऊपर काफी हद तक वर्क हो गया हुआ है। और अगर आप उसमें देखते हो तो कई बार ओरा के आगे जो नंबर लिखा होता है उसके आगे जो डिस्क्रिप्शन होती है उससे आइडिया लग जाता है कि कहाँ पे कौन सी चीज गलत हुई है। सिंथेटिक एरर्स तो वेरी इजीली यू आर एबल टू डू इट, बट कई बार लॉजिकल एरर्स के केस में जो ओरा के साथ आपका जो नंबर एरर मैसेज आता है वो क्लियर नहीं होता, सो वो एरर मैसेज इज नॉट वेरी डिस्क्रिप्टिव ऑफ व्हाट इज द एरर। सो वो आपकी एक तरह की ड्रॉबैक रहता है इसमें, ठीक है। सो दिस इज योर प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेबिलिटी। इसका एक एग्जांपल है SSH प्रोग्राम, ये यूनिक्स में होता है।
allows a user to set up a public key mechanism for enciphering communication between systems. एनसिफरिंग मीन्स आप उसको एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर ले सकते हो, और कम्युनिकेशन करनी हो अगर आपने पब्लिकली, तो आपका हमेशा एनक्रिप्टेड मैसेज ही कम्युनिकेशन के लिए यूज हो. द इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन मैकेनिज्म फॉर द यूनिक्स वर्जन अलाउज वन टू अरेंज दैट द पब्लिक की be stored locally without any पासवर्ड प्रोटेक्शन. अब यूनिक्स वर्जन में एक इंपॉर्टेंट ये भी रहता है, जो इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरिंग मैकेनिज्म आता है उसमें ये इंश्योर करते हैं जितनी भी पब्लिक कीज हैं वो लोकली स्टोर की जाएं, लोकली उसी सिस्टम पे स्टोर की जाएं और पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो. सॉरी, पासवर्ड प्रोटेक्शन उसमें नहीं रिक्वायर्ड. In this case, one needs to supply a password to connect to the remote system, but will still obtain the unciphered connection, and this mechanism satisfies the principle of psychology. अगर आप इसमें locally कोई पब्लिक की जो है उसको यूज कर रहे हो, तो उसको आपकी पब्लिक की अगर लोकली पड़ी है, अनसिफर्ड मींस एनक्रिप्टेड है, तो वो तो ठीक है. अगर आपकी वो हर बार इंक्रिप्टेड मैसेज को हर बार जाके सर्वर पे ही चेक करना है, वो एक अलग मेथड है, ठीक है, वो कई बार कई जगह पे रिक्वायर्ड होता है, तो वो जरूरी है, वो कई बार ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जरूरी है, तो ठीक है. बट इट इज नॉट ऑलवेज इट इज नेसेसरी, ताकि साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेबिलिटी मींस यूजर को ये भी तो लगे ना कि हमारा काम इजीली हो रहा है. इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है कि हर बार जब तक हम नेट से कनेक्टेड नहीं है, जब तक हम सर्वर से कनेक्टेड नहीं है, तब तक हमारा जो है वो हम एक्टिविटी को चला ही ना पाए, तो वो भी नहीं होना चाहिए. some access can be given locally also, और उस locally के कारण उसमें वो जो अगर आपके पास की है, पब्लिक की है, उसके थ्रू आप उसको डाटा को या उस इंफॉर्मेशन को असेस कर पाओ. So this is your principle of your psychological acceptability. Any question up till here, beta? So this topic is almost over, but I'll be throwing some polls now for you, and one more poll I'll be giving you. So attempt your poll first. Okay, time is over. I'll share the result. So privilege is assigned to super user. We had studied it today only. आपने पढ़ा होगा फुल रीड, फुल राइट एंड फुल एग्जीक्यूट राइट्स हैं, और सारे के सारे सुपर यूजर के पास राइट्स हैं. और सुपर यूजर वो है जो एक्चुअल में हर एक रिसोर्स के ऊपर हर तरह का काम कर सकता है, चाहे वो रीड राइट्स हो, चाहे राइट राइट्स हो, या एग्जीक्यूटेबल राइट्स हो. और ये नॉर्मली जो है वो आईटी का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, सिक्योरिटी मैकेनिज्म का एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके पास होता है. प्लस द पर्सन ओनर कह सकते हो, या मैनेजर कह सकते हो, या सीईओ कह सकते हो, उनके पास ये राइट्स रहते हैं. I'll send you one more poll also. So attempt this poll also. Half time is over.
Time is over. Privileges of fail-safe states, all the threes, all of the above, you can see to it. इसमें सारे ही आएंगे. Restricts the how privileges are initialized when a subject or object is created. Unless a subject is given explicit access to an object, it should be denied access to an object. It requires that the default access to an object is none. ये तीनों चीजें आपने इस स्लाइड में भी पढ़ी थी, ये तीनों एग्जिस्ट करती हैं. So all of the above is the answer. I'm sharing the result. Okay, so I have already shared this PPT with you people, and Sahil, just check it out. I think so. I have already shared this PPT. Still, if you have not received it, you can convey it to me, and I'll resend it if it is required. And I'll start with the next topic. Let us see to it if it is time permits us. Information security mechanisms. Okay. What I'll do is I'll give you just an introductory part of today. Next part. ये वाली PPT resend कर देना. Okay, I'll resend it, Sahil. No problems. I'll resend in your this WhatsApp group. Okay. Okay, we'll move on to the next topic. जो हमारा section C start हो जाएगा. Section B we have completed it, and I have already provided you with the books and material also that is required, and I have already even conveyed what kind of chapters you need to study for your section A and B. And I'll again mention it. If someone has any problem, they can directly contact me also. And I'll even share this PPT today only, immediately after the lecture. We'll start with the section C. How much is the time left? Okay, time is very less. तो मैं दो तीन चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ. So anyone having any question, they can raise their hands. Anyone wants to interact regarding any other thing, तो वो भी आप raise कर सकते हैं. और अगर आपको लगता है ये क्लियर है तो then I'll be stopping this lecture because my this chapter is over and I'll not start the new chapter now because time is very less. So हम next section C जो है start करेंगे अब. So next time से start कर लेंगे. And try attending your lectures positively. 30th अप्रैल तक आपकी जो attendance है वो compile हो जाएगी. और जो लोग इसमें बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, you can see to it around 30 to 33 students have come out of 52. So जो जहाँ ये नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो नहीं अटेंड कर रहे हैं, दे विल बी द एक्शन विल बी टेकन बाय द कॉलेज. ये क्लियर है. इसलिए बाद में नहीं होना चाहिए कि हमने अटेंड नहीं किया. ऑनलाइन लेक्चर्स भी आपको लगाने ज़रूरी चाहिए. गौरव, चेक योर दिस. आपने मेरे को लिखा कि किसकी असाइनमेंट सबमिट नहीं हुई है. आप अपना जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें चेक करो. मैंने ऑलरेडी अपने उसमें एक मैसेज डाला हुआ है. उसमें अगर आपका नाम है तो इट्स फाइन, अदरवाइज आपकी आई होगी. सो अगर आप इंश्योर करना चाहते हो कौन कौन है तो उसमें चेक करो. नहीं तो अपनी क्लास में से किसी को ऑलरेडी व्हाट्सएप के ऊपर पड़ा हुआ है मैसेज मेरा, उसको चेक करो. एनीवन एल्स हु वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन नाउ? Okay then, I'll stop my lecture here. Okay.